السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله للحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومشايخ الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء، ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ سلام صلوات سب صاحبان پر۔ اس نیت سے صلوات پڑھیں کہ صاحب الزمان آپ پر نظر خاص فرما دیں۔ مولا کی معرفت واجب، امام کی معرفت واجب، ایسا واجب کہ جس واجب کی ادائیگی سے باقی واجبات ادا ہوں گے۔ میں نے کوئی آپ کا وقت لیا ہے، یہ بات آپ تک پہنچی ہے، لفظ تو پہنچ گئے ہیں، معرفت کی معراج تک کی بات تھی۔ معرفت الامام
ہم سب پہ واجب ہے، اور ایسا واجب ہے جو اوجب الواجبات ہے، جو واجبوں کا بھی واجب ہے۔ بھائی میرے محترم سامعین ہیں، جو واجبات پر بھی واجب ہے۔ یہ مولا حسین کے صدقے میں آپ اتنی عظیم جملے سن رہے ہیں۔ ہاں، معرفت امام، معرفت مولا، مولا علی سے لے کر مہدی دوران، ان 12 کی معرفت کی بات کر رہا ہوں، معرفت امام کی بات کر رہا ہوں، معرفت امامت کی آپ تک کلمہ پہنچانے لگا ہوں۔ یہ واجب ہے ہمارے اوپر، اور ایسا واجب ہے جو اوجب الواجبات ہے، تمام واجبات کا بھی واجب ہے۔ اب اوجب الواجبات کی تعریف اپنے جوان اور بزرگ اور محترم اور پڑھے لکھے اہل علم سامع تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اوجب الواجبات کون سا واجب ہوتا ہے؟ جس کے ادا کرنے سے دوسرے واجبات ادا ہو سکتے ہیں۔ اب توجہ کرو، آپ پر توجہ کریں۔ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، خمس واجب، یہ سارے فروعات فرعی واجب ہیں۔ توحید کی معرفت، اب سر اٹھے گا پتہ نہیں کون سا بندہ لے گا۔ توحید کی معرفت واجب، نبوت کی معرفت واجب، عدل کی معرفت واجب، اللہ کی صفات کی معرفت واجب، قیامت کی معرفت واجب۔ یہ اصول دین والے واجب ہیں ہمارے اوپر۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہیں اصول دین والے واجب کیا جاننا ضروری، فروع دین والے واجب کا انجام دینا ضروری۔ بھائی ہیں دونوں واجب، ہیں دونوں واجب، ہیں دونوں واجب۔ اب سن لو، اوجب الواجبات وہ واجب ہوتا ہے جس کے ادا کرنے سے باقی واجبات ادا ہو سکے۔ یعنی اگر معرفت امام ہوگی تو نماز ادا ہو سکے گی، روزہ ادا ہو سکے گا، حج زکوٰۃ ادا ہو سکے گی، اور ایمان توحید بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ نبوت کا عقیدہ بھی قبول فرما لے گا۔ ساروں اٹھے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اوجب الواجبات اس واجب کو کہتے ہیں اگر تم نے اس ایک کو ادا نہ کیا، نہ واجب، نہ نماز ادا ہوئی ہے، نہ روزہ، نہ توحید، نہ نبوت، کچھ بھی ادا نہیں۔ آخر تک حیدری جو نعرہ میں پیچھے رہا، صلوات میں پیچھے رہا، مولا اللہ کا مدیون رہے گا۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں وقت پر ہی آپ کی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی توجہ، معرفت امام اب سمجھ آئی ہے؟ ایسا واجب ہے جس کے بغیر کوئی واجب شریعت کا ادا نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں، یہی تو ہم بتا رہ جاتے ہیں، کیوں ہم ہمیشہ جب بھی منبر پہ آتے ہیں بات امامت کی کرتے ہیں، ولایت کی کرتے ہیں، مولا کی کرتے ہیں، امام کی کرتے ہیں۔ بابا یہ تمہیں دے کر تمہاری نمازیں بچانا چاہتے ہیں۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ اے مسلمانوں، ہمارے احسان کو نہ بھولا کرو۔ ہوئے 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 ہم مجلسوں میں تمہارے واجبات بچانے آتے ہیں۔ یار مجھ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تیری نمازیں نہیں بچے گی اگر معرفت امام تجھے یاد نہ دلانے۔ بندے اسی کے اعمال قبول ہیں، ٹھیک اسی کے ہوں گے، ادا اسی کے ہوں گے جو دل میں مولا کو ولی اللہ مان کے سجدہ کرے گا۔
اور شیعو اپنا مذہب بتا رہا ہوں تمہیں، بچوں، جوانوں، میرے سیاہ ریش والوں اور سفید ریش والوں، تمام کو، اپنی ماؤں بہنوں کو تمہیں واجب رجوع کروا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے جس چیز کا بھی کہا جائے امام کو نہیں بھولنا، ولایت کو نہیں بھولنا، امامت کو نہیں بھولنا. یہ خدا نے ایسا کیا ہے کہ اپنا سب کچھ بنا کر امامت اور ولایت میں رکھ دیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سارے مل اب 10-20 آدمیوں کو اکٹھا نعرہ لگوانا بھی، یہ بھی میرا کام ہے. یعنی ہر ایک جو نعرہ لگاتا ہے پھر ذرا تقسیم ہو جاتے ہو، حرج نہیں ہے. بہرحال ایک بندہ کوشش کرے اتنا بلند نعرہ کہ سارے اسی ایک کا جواب دیں. شاباش. چل الحمدللہ رب العالمین. اجازت ہے میں آگے بڑھوں؟ یہ ہے ہمارے اوپر واجب. اب اس معرفت الامام کا طریقہ کیا ہے؟ آج میری مجلس کا عنوان ہے یہ. میں بھی اپنے محترم سامع کو کچھ عرض ہدیہ کرنا چاہتا ہوں نا. یہ معرفت واجب ہے. اس واجب کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی معرفت الامام کا راستہ کون سا ہے، کیسے پہچانے؟ بڑے راستے ہیں. ہمارے منبر پر ایک مشہور راستہ ہے جس کو آپ کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور میں آپ کو تھوڑا اس سے بلند لے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا ساتھ دو گے؟ بندہ جہاں ہو وہاں سے بندہ اس کو اوپر لے جائے تو شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، ناراض تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں پہلے بتاتا ہوں وہ کون سا طریقہ ہے. ہم اپنے مولا کو پہچاننے کے لیے جو عموماً اکثر طور پر طریقہ اپنایا ہوا ہے، اپنے مولا کو غیروں سے مقابلہ کر کے پہچانتے ہیں. یہ زیادہ بتایا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ موازنہ کر کے، مقایسہ کر کے، یہ اور وہ. معاف کرنا، جیسے بھی مثلا دو پہلوان ہیں تو آپس میں آپ مقایسہ کرتے ہیں. تو امام کو غیروں سے مقابلہ کر کے پہچانا بھی جاتا ہے، آپ تک وہ معرفت بھی جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ بچوں والی معرفت ہے، سلمان والی معرفت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب جن کو یہ میرا دعویٰ ذہن میں رہے، اگر بات یہاں لگے، میں آج بڑا مختصر پڑھنا چاہتا ہوں تو بولے ضرور، پیچھے نہ رہے. میں دلیل دینے لگا ہوں. کیوں یاد رکھو جب بھی، اچھا چلو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں. عموماً کہا جاتا ہے مقابلہ کیسے کرتے ہیں، مثال دینے لگا ہوں. اس طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ جو میرے مولا کے مقابل میں ہیں وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، میرے مولا نہیں بھاگتے. میں ایک ہاتھ جوڑ چکا ہوں، ہاتھ جوڑ ایک جملہ آج کرنا چاہتا ہوں. شیعو، موالیو، صاحبان معرفت، یہ سچ ہے کہ میرا مولا میدان میں ہی رہتے تھے. میدان تھا ہی علی کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا فتح الا علی، مرد ہی علی کے علاوہ کوئی نہیں. حیدری، توجہ کرنا، مرد ہی اس کے علاوہ نہیں ہے. جملہ لیتے جاؤ، پرواز کرنا. علی کے بعد وہی مرد ہوگا جو علی کو مان کر اس کے قدموں میں رہے گا. علی کا دشمن مرد نہیں ہو سکتا. اب سمجھ میں آ گئے؟ اس کو منکر کبھی مرد نہیں ہو سکتا. کہنا چاہتا ہوں یہ سچ ہے، لیکن جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. شیعو، میرا مولا ایسا ہی ہے
لیکن یہیں پہ رکا نہ کرو، میرا مولا اس سے کہیں زیادہ بلندہ۔ اچھا الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں اور وقت میں آپ تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا ہے، ہم جب مقابلہ کرتے ہیں، اب بتانے لگا ہوں کیوں مقابلے سے نہ پہچانو۔ سارے بنے مجھے دیکھیں اور آج اشارے پر میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، اشارے سے سمجھانا چاہتا ہوں بات کو۔ جب بھی کسی کا مقابلہ کرو گے دوسرے سے اور ایک ہو اعلیٰ اور دوسرا ہو ادنا، میرے پاس اور مثال نہیں ہے ورنہ جس اعلیٰ کی اور ادھر ادنا کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے اشارہ تو کیا مثال ہی نہیں ہے۔ وہ ہے اعلیٰ، مجھے دیکھنا بچوں، وہ ہے اعلیٰ، ایک ہے ادنا۔ اگر آپ اعلیٰ کو نقصان دیکھنا اس مقابلے سے پہچاننے کا، مقابلہ کر کے پہچاننے کا نقصان دیکھنا، اگر کوئی ہو اعلیٰ اس کو ادنا کے ساتھ مقابلہ کریں، مجھے دیکھنا موازنہ کرنے کے لیے اعلیٰ کو اوپر سے نیچے لے آنا پڑے گا۔ نہیں میں بات نہیں پہنچا سکا، کہنا یہ چاہتا ہوں اگر مولا کو غیروں سے مقابلہ کر کے پہچانو گے تو مولا کی شان کو کام کرو گے، مولا کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ توجہ کرو، بات پہنچ گئی ہے، تو یہ نقصان ہے اور اسی مقابلے نے ہمیں آپ تک حقیقی فضائل مولا پڑھنے نہیں دیے۔ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے یہیں پر، ہاں بھلا اس کا مقابلہ، توجہ کیجئے، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، اس کا مقابلہ جو پیدا ہوتے ہی نجس ہوتے ہیں اس امام سے کروں جو اللہ کے گھر کعبہ میں آ کر کعبہ کی طہارت میں اضافہ کر دے۔ کیوں ہاتھ آپ کے پیچھے ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مقابلہ کرو گے تو وہ جو صاحب طہارت الہیہ ہے، جو مظہر قدوسیت پروردگار علی ہے، اس کا مرتبہ کب ہو جائے گا؟ جس کے نزدیک کبھی بھی کوئی رجس نہیں جاتا ان سے مقابلہ نہیں ہوتا جو کافروں کے گھر پیدا ہو رہے ہو۔ او بھئی جتنے بھی ہیں، میرا ساتھ دینا یار، میں راضی ہوں یار، وقت ہو رہا ہے، دل میں نعرے مجھے دعا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ کرو، جتنے بھی ہیں، یہ کوئی میں بات اختلافی تو نہیں کر رہا، سب کافروں کے گھر پیدا ہوئے، کافر تھے، کوئی 40 سال بعد، کوئی 60 سال بعد ایمان لا رہا ہے۔ علی وہ ہے جو کعبے میں آ کر ابھی قرآن آیا ہی نہیں تھا، کہتا ہے محمد بتاؤ، تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ حیدر حق کہا ہے نا میں نے، حق کہا ہے نا میں نے، اس میں تو کسی کی بات ہی نہیں ہو رہی بھئی۔ وہ جو کچھ انہوں نے لکھا بچوں نے، آپ مگر نہیں پڑھتے، آپ خود بھی تو جانتے ہیں، یہی ہے نا بات۔ اب ان کو میں اپنے طاہر مولا سے مقابلہ کریں؟ ہائے 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 ہائے، آؤ پھر کون محمدی کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے عزت الہیہ کی قسم، اللہ نے اپنے بندے ہمارے مولا علی کو اتنا بلند بنایا ہے، غیر تو اپنی جگہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا
अच्छा दलील देता हूँ। दलीलों के अंबार हैं, एक सुनो। सैकड़ों में से एक रिवायत हदिया करने लगा हूं। जो शिया है, जो मोमिन है, वो तो परवाज करे ना, अबू ज़र के कदमों में जाकर सलेमान के कदमों को बोसा देकर कहे, जब आएंगे ना हमें भी अपने साथ खड़े रहने। बात करने लगा कैसे अली मौला का मुकाबला हजरत आदम से लेकर ईसा नबी तक नहीं हो सकता। मुत्तफकुन अलैह, जिसमें किसी मुज्तहिद फकीह आलिम मोमिन को शक नहीं है, वो ये है कि जब मेरे रसूल, एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ, जब मेरे रसूल मेराज पर गए, चौथे आसमान पर तमाम अंबिया खड़े थे, मेरे रसूल का इंतजार कर रहे थे। जब वहां पर पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया, फस्अल, मेरे हबीब इनसे सवाल कर, तुम बताओ मुझसे एक कम 1,24,000 नबियों, अल्लाह ने तुम्हें नबुव्वत कैसे दी है? बोलो 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 यार, सामने वालों, तुम्हें रिसालत कैसे दी है? ये आदम अजमा तो पूरा हाथ उठा रहा है, आपको भी हाथ उठाना चाहिए। इंतहाई तवज्जो, आपको रिसालत कैसे मिली, नबुव्वत कैसे मिली? तो तमाम ने बैक वक्त यही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब तक हमने आपकी नबुव्वत का कलमा, अली की विलायत का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह ने नबुव्वत अदा नहीं फरमा। अली मौला, सारे बोलो यार। बात बताओ बाबा, जिस मौला की विलायत पर ईमान लाने से अल्लाह नबुव्वत का रिज़्क दे, उसे मौला से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जिसके कलमा पढ़ने से वो साहिब ईमान हो रहा है। क्या बात है, बात हक पहुंच गई। अच्छा, अपनी बात की तायीद में एक रिवायत, मजलिस खत्म। लिखो मेरे बच्चों, आपके लिए, जवानों के लिए ये हदिया कर रहा हूँ। इस रिवायत को फज़ल इब्न शाज़ान ने अपने, जिब्राइल फज़ल इब्न शाज़ान इसका नाम है, इब्न शाज़ान के नाम से मारूफ है। एक मोजज़ा सुनाने लगा हूँ। इसकी किताब का नाम है अल फ़ज़ाइल, मौला के फ़ज़ाइल की अहादीस इसने जमा की है। मोजज़ा सुनाने लगा हूँ। रसूल के बाद बड़ी बड़ी हुकूमतें, सियासतें, दौलतें इस पर लगी कि अली के फ़ज़ाइल को मिटा दो। जो अली के फ़ज़ाइल लिखे उसको कत्ल कर दो, जो सुनाए उसकी ज़बान काट लो। मिस्र में तो मार को तो सारे जानते हो, इस जैसे बहुत सारे और हैं। ठीक है, मौला के फ़ज़ाइल पर जितनी किताबें लिखी हुई हैं उनको जला दो। एक मर्तबा नहीं, कई कई मर्तबा इन अहादीस को जलाया गया। नहीं, गौर नहीं किया। फ़ज़ाइल थे अली के, ज़बान थी मोहम्मद की। अली का दुश्मन इतना बेअकल जल चुका था, अली की दुश्मनी में आकर मोहम्मद का कलाम भी जला रहा था। और नबी का कलाम जो अली के बारे में फरमाया था उसको भी जलाते गए, और अभी तक जलाते आए हैं। बनु उमैया, बनु अब्बास जितने थे, ये मौला के फ़ज़ाइल मिटाते 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 खुद मिट गए। मौजज़ा ये है कि ये किताब 8वें नामे इमाम का सहाबी है इब्ने शाज़ान, जिसने अल फ़ज़ाइल के नाम से मौला के फ़ज़ाइल पर किताब भी लिखी है। 8वें नामे इमाम का सहाबी। ये मिटाने वाले मिट गए, वो किताब आज भी मौजूद है। अब ये हमारे मोहसिन है ना, हमारे ऊपर अमानत है, मैं आप तक पहुंचाऊं।
हम पढ़कर आप तक मेंबर तक पहुंचाएं, ये अमानत आप तक दियानत कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। किताब नजफ से छपी हुई उसके सफ़ा नंबर 23 पर यह रिवायत है जो मैं हदिया करने लगा हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ का ज़माना, ये वो जालिम बादशाह है जिसके दौर में अपने आप को शिया कहलवाना दूसरे माना में मौत के मुंह में देना है। ये बड़ा जालिम मलऊन बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ, इसके दौर में मर्द नहीं एक मजदूर है। बोलते हो अब बोलते हैं, मर्द नहीं मजदूर है। तारीख ने इसका नाम लिखा है, याद करो, हुर्रा बिन्ते सादिया हलीमा। ये बीबी हलीमा के खानदान से है, बड़ी मवालिया है, मर्द नहीं मजदूर है। मजदूर कभी खुद दरबार में चल कर नहीं आती। अली के फजाइल की वजह से इस मर्द को नहीं, मजदूर को, मवालिया को, हलालिया को, आरिफा को, बड़ी तकवा मोमिना को दरबार में लाया गया। जुर्म ये था, जुर्म क्या था? ऐन लफ्ज़ है रिवायत के, हदिया कर रहा हूँ, इसको लाया गया। हज्जाज के सामने ये बीबी पर्दे में खड़ी थी। इस हज्जाज मलऊन ने इस बीबी मोमिना मवालिया हलालिया से पूछा, कीला के इन्नके तुफज़्ज़लीना अलीयन अलल अस्हाब, कहा जाता है, तवज्जो करना, तू हुर्रा बिन्ते सादिया हलीमा अपने मौला अली को असहाब से अफजल मानती है। जुर्म समझ में आया? जुर्म समझ में आया? तू अपने मौला को असहाब से अफजल मानती है। बैठो बैठो जल्दी। मैंने शायद आज 7वीं मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये बात मैंने आपको नहीं कही जो अब कहने लगा हूँ। इस भाई से लेकर, इसको मुतवज्जो करो, आप इस भाई से लेकर, टाइम थोड़ा है, या अली, इस भाई से लेकर, देखो मुझे आखिर तक खड़े हुए, बैठे हुए सामने बच्चों, इस मोमना के मदयून बनोगे। इसने दरबार में इस जालिम बादशाह के सवालों के जवाब दिए हैं, हमें मारिफत दी है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, मोमिना को खराज अकीदत पेश करने के लिए। तवज्जो से सुनो, न ज़बान बंद हो न हाथ नीचे रहे। और अगर इसका एक एक जुमला मारिफत का जीना ना हो तब कहना, मैं तो वक्त लेने वाला बंदा नहीं हूं। फिर एक मर्तबा कहता हूं, इस जालिम बादशाह ने इस मोमिना को कहा, तेरे बारे में कहा जाता है, कीला इन्नके तुफज़्ज़लीना अलीयन अला असहाब, जुमले और हैं, मैं असहाब बोल रहा हूं। उसने कहा, तू, तेरे बारे में कहा जाता है, यानी ये अकीदे वाली थी, हमेशा कहती थी कि मेरा मौला असहाब से अफजल है। जब इसने कहा ना, तू अपने मौला को असहाब से अफजल मानती है, कसम बखुदा मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे आज उसके पाँव जूते की खाक मिल जाए ना, मैं उस पर माथा भी रखूँगा, ज़बान भी रखूँगा। वो जवाब दिया है इसने, इसकी तरफ देख कर कहती है, तवज्जो करना, तवज्जो करना, मेरी मारिफत की तौहीन न कर, मेरी मारिफत की तौहीन न कर, मैं अपने मौला को फकत इन असहाब पे फजीलत देती हूँ। उसने कहा, तू असहाब पे फजीलत देती है, कहती है तौहीन न कर, तू समझता है मैं अपने मौला को फकत इन असहाब पर फजीलत देती हूँ। ये गुस्से में आकर कहता है, इसका मतलब ये है कि तू असहाब के अलावा भी किसी और पर फजीलत देती है। जमीन पे बैठा रहा जो मोमिन इस मोमिना का मदयून होगा, इसकी तरफ देख कर पर्दे में बोल कर कहती है, असहाब पर नहीं, बल अना उफज़्ज़िलुहु अला आदम व नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा। हज्जाज सुन, मैं अपने मौला को आदम सफीउल्लाह से बुलंद समझती हूँ, नूह से बुलंद समझती हूँ, इब्राहीम आदम से लेकर ईसा तक अंबिया से अफजल है। तशरीफ रखिएगा। मैं, अच्छा अब सुने, अब सुने, अब सुने,
उसने कहा तू मुझे कहता है मैं असहाब पर, ये मेरी मारिफत की तौहीन है, ये होते कौन है मेरे मौला के मुकाबले में। बल्कि मैं अपने मौला को अंबिया से अफजल मानती हूँ। मैंने आपको कहा है अली का दुश्मन पहले भी आग होता है फिर और जल जाता है। इसने मोमिना का ये अकीदा सुना, कहता है अच्छा तू अपने मौला को अंबिया से भी अफजल मानती है। वो कहती है फरमाती है हाँ हाँ अफजल मानता हूँ। अब इसने एक जुमला कहा, मैं जवानों से और बुजुर्गों से उस जुमले की नज़ाकत की दाद लेना चाहता हूँ। इसकी तरफ देखकर जब इसने कहा मैं अफजल मानती हूँ तो इसने आगे कातल की धमकी दी कि अगर तूने कुरान से अली मौला की फजीलत अंबिया पर साबित न की लअक़्तुलन्नके, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वो नज़ाकत बताऊं, लगता है जब दुश्मन मौला के पास इल्म न हो फिर कातिल की धमकियां देता। ओ आज़ादार, तुझे शहीद करने वाले अबू जहल की जाहिल औलाद है। घबराया ना कर, इल्म है, मिंबरे हुसैन से इल्म दिया जाता है, फकाहत दी जाती है, मारिफत दी जाती है। किसी के पास कुछ बात है कर ही नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग तुम्हारे शहनशाहों को इल्म में नौकर बना चुके हैं, तुम गौर होते हैं। अब सुनो, मेराज है भाई जिसके ऊपर मैं दाद दिया करता हूं, इस मोमिना को मेराज है। इसने कातिल की धमकी दी थी, मस्तूर थी, डर जाती, घबरा जाती। उसने जो कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, कोई कमजोर ईमान वाली होती है? याद किया हुआ सबक भी भूल जाती। आरिफा कामिला थी, मोमिना कामिला थी, इल्म पूरा रखती थी, मौला की मारिफत कामिल रखती थी। इसने कातिल की धमकी दी और जुरात में आ गई। जुमले पर मैं कुर्बान जाऊं जो पीछे रह गया, मोमिना जाने तुम जानो। इसने कहा मैं तुझे कातिल कर दूंगा। डरी नहीं है, घबराई नहीं है, खौफ में नहीं आई, बल्कि इसकी तरफ देख कर कहती है मैं तो कब से इस इंतजार में थी, अल्लाह मुझे दुश्मन के दरबार में मौला के फजाइल पढ़ने का मौका बराबर करना। ये ना रखो, अली अली, इसका जवाब दो यार जरूर, फिर एक मरतबा कहो अली अली। अली मान अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मौला नूर मार्फत तशरीफ रखें, बहुत मेहरबानी। मौला आपको नूर मार्फत दे, मौला के कदमों में पहुंच जाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहती है मैं तो कब से इस इंतज़ार में थी कि अल्लाह मुझे दुश्मन के दरबार में मौला के फज़ाइल पढ़ने का मौका फराहम करता। बस ये पूरा आग बगोला हुआ, मोमिना नूर विलायत से बोलने लगी। आज मुझे कहा है जी 11:15 बजे बरामदगी कराएं, टाइम मेरे पास 12 मिनट रह गए हैं। ठीक है, किसी मजलिस में मैं इस अशरे में फ़कत आपको एक
तजल्लियात ही सुनाने सका, यानी वक्त की वजह से सुना सका। वक्त पूरा होता आपको पूरी मजलिस सुनाता। इस मोमिना ने साबित किया कुरान की आयतों से एक एक नबी पर, हज़रत आदम से मेरा मौला कैसे अफजल, हज़रत नूह से कैसे अफजल, हज़रत इब्राहीम से कैसे अफजल, हज़रत मूसा से कैसे अफजल, हज़रत ईसा से कैसे अफजल। जब हज़रत ईसा तक पहुंची नहीं थी, इसने एक मर्तबा कहा काफ़ी है काफ़ी है, उसने कहा नहीं नहीं ईसा तक जाऊंगी। ठीक है। अब मज़ा तो यही था कि मैं आपको, जैसे मोमिना ने वहाँ पर ये एक एक नबी पर मौला की फ़जीलत को साबित किया है, मैं भी आपको हदिया करता। वक्त थोड़ा है, फिर कभी बता देना, पूरी मजलिस 2 घंटे की सुनाऊंगा। एक नबी का एक तजल्ली की खातिर बतौर नमूना सुनाता था। ठीक है, एक नबी का। मोमिना ने कुरान की आयत पढ़ी हज़रत नूह के बारे में, जानकर इसी एक किस्से को एक को बताने लगा। हज़रत नूह का किस्सा बयान करके फरमाती है, जाकर देख सूरह तहरीम में अल्लाह फरमा रहा है, नूह नबी की बीवी और लूत की बीवी के बारे में, मसलुल लज़ीना कफ़रू इम्राअता नूहिम व लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। अजीब बात है, अल्लाह काफरों की मिसाल देते हुए फरमाता है, मसलुल लज़ीना कफ़रू, उन काफरों की मिसालें जो काफिर हो गए, नूह नबी की बीवी है और लूत की बीवी है। ओ भाई ये कुरान है ना, जाकर सूरह तहरीम देख लेना। ये हज़रत नूह की बीवी और हज़रत लूत की बीवी, और खुदा को काफरों के लिए और मिसाल नहीं मिली थी। गौर नहीं कर रहे। मसलुल लज़ीना कफ़रू, काफरों की मिसाल देते हुए अल्लाह ने नूह और लूत 2 नबियों की 2 बीवियों का तज़किरा किया। और मिसाल भी तो काफरों की दे सकता था अल्लाह, लेकिन इनकी मिसाल देकर बताना चाहता था मेरा मालिक मेरे नबी पर एतमाद किया करो, उसकी बीवी पर जरूरी नहीं है। मुझे देखो खत्म। हुर्रा कहती है, हुर्रा फरमाती है, हज्जाज ये कुरान है या नहीं? उसने कहा है। कहा ये लूत और नूह अल्लाह के नबी है या नहीं? कहा है। फरमाया ये उसकी बीवियां है या नहीं? कहा है। कहा ये काफरा थी या नहीं? कहा थी। कहा मुझे देख मेरा मौला कौन है? वज़ौजतो मौलाया फातिमातुज़ ज़हरा, मेरे मौला की ज़ौजा फातिमा ज़हरा। रुको। यहीं पर जनाबे हुर्रा रुक जाती ना, मारिफत का एक दर्जा था। मैं कुर्बान इस मोमिना की मारिफत पर। कहती है कौन सी फातिमा? अल्लती यरज़ल्लाहु लिरिज़ाहा व यस्खुतुल्लाहु लिसख़ातिहा, मेरे अली की ज़ौजा वो फातिमा है जिसके राजी होने पे अल्लाह राजी होता है, जिसके नाराज होने पे अल्लाह नाराज। हैदर सारे अली के जौहर, बतूल के जौहर का नाम बुलंद लो। इस विलायत को बचाने के लिए हुसैन ने अकबर भी दिया, असगर भी दिया। वो इस मारिफत को बचाने के लिए हुसैन का 13 साला जवान दुल्हा भतीजा भी तकसीम हो गया। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय में अहले बैत के। आओ रो लें उन गरीबों को जिनकी माँ रोती थी तो ताजियाने मारते थे। सारे रो पड़े हो,
कुछ रह गए हो रो, इससे बड़ा तो मसाइल भी नहीं है यार। मकतूल की माँ को लोग दिलासा देते हैं, ताजियाने नहीं नाचते। शाबाश शाबाश शाबाश। आम अपनी मौत कोई मर जाए उसकी माँ को तसल्ली दी जाती है, जिसका जवान बेटा कत्ल हो जाए और फिर दुल्हा हो माँ जिनको सेहरे की आरज़ू रखती हो। यार मेरे कहने पे रोएंगे आप सारे। आप आखिर वालों आवाज़ बुलाने पर सोचो तो सही। उस शहजादे की शहादत के जुमले कहता हूँ जो जिसकी शहादत के बाद माँ रोती थी, ताजियाने मारते थे। ज़रूर मातम करना सर पे। जिसकी बहन रोती थी, तमाचे मारते थे। रो कर कहती थी हया करो, मैं दुल्हे की बहन हूँ। एक दुआ कर रहा हूँ तेरे रोने के लिए, तैयार हो जा, कोई महरूम ना रहे आज इतने बड़े मसाइब में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे हर मोमिना मस्तूर का बख्त सलामत रहे। हर शरीफ मस्तूर का बख्त उसका शौहर होता है, और अगर शौहर दुनिया से चला जाए मस्तूर पर लफ्ज़ बेवा आ जाता है। बेवा की ज़िंदगी बड़ी गुर्बत और मिस्कीनी में गुजरती है। ऐसा है या नहीं? कसम बखुदा बीबी फरवा कासिम की अम्मा का वक्त उस वक्त सर से उतरा जब कासिम 3 साल का था। हाय हाय हाय। सुनना सुनना जुमला सुनना। और अगर वक्त उतर जाए दुआ करो अल्लाह उसको एक बेटा अता करे। फिर बेवा उस बेटे को देखती रहती है, उसको पालती रहती है। दिल में यही होता है ये जवान होगा, इसकी शादी करोगी, मेरे दुख खत्म हो जाएंगे। 10 साल तक बीबी उम्मे फरवा कासिम को जवान करती रही। ये जवान होगा, मातम मातम कहो हाय कासिम हाय कासिम। बीबी जवान कर दी आई, ये जवान होगा, इसकी शादी करूंगी, मेरे दुख खत्म हो जाएंगे। रोने वालों 10वीं का दिन आया, माँ ने कहा बेटा तेरा चचा हुसैन हाल में नासिर कह रहा है, तू कैसे खड़ा है? ये है करबला की माएँ, ये है करबला की माएँ, ये है करबला की माएँ। माँ ने कहा इजाजत लो ना, जाओ, अब तुम्हें मक्तल सुना रहा हूँ। चलते हुए कासिम आए मौला हुसैन की बारगाह में, अर्ज करते हैं चचा चचा मुझे इजाजत दो, मैं मैदान जाता हूँ। कसम बखुदा हर मक्तल वक्त लिखा है हुसैन रोने लगे, रोकर भतीजे को गले लगा के फरमाते हैं तू मेरे मसलूम भाई की निशानी है, और तू मेरे हसन की निशानी है, और मैं तुझे मैदान कैसे भेजूं कैसे? अजरकुम अल्लाह। कई मर्तबा शहजादे ने इजाजत ली, मौला रोक एक टीले की ओट में आकर जनाबे कासिम बैठ गए। जानू पर हाथ है, मैं कम से कम 10 से ज्यादा मक्तल का हवाला ये दे रहा हूँ जिसमें ये लिखा है। वहाँ टीले की गोल लोट पे आकर बैठ के रो रहे थे, कह रहे थे खैमे में जाता हूँ, अम्मा फरमाती है चचा पे कुर्बान हो जाओ। चचा के पास जाता हूँ, मौला मुझे इजाज़त नहीं देते, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यकदम हजरत कासिम को बाबा की वसीयत याद आई। इस बाजू पर लिखा हुआ एक तावीज़ था, मौला ने फरमाया था जब मुश्किल पेश आए तावीज़ खोलोगे तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। बस उस तावीज़ को लेकर दौड़ता हुआ कासिम मौला हुसैन के पास आए, आज करते चाचा इजाज़त दे न दे, ये बाबा का लिखा हुआ पढ़ ले। अल्लाह पाक की कसम जनाबे का इमाम हुसैन ने लिखा हुआ पढ़ा। एक मर्तबा मदीने की तरफ रुख पड़ गया, बकी की तरफ देख कर कहते हाय मेरा मसरूम भाई, और तू मेरे लिए करबला में हसन अपने बेटे कासिम को छोड़ गया।
हुसैन भाई करबला में मेरी तरफ से कासिम कुर्बान कर देना। अब हुसैन उठे, अजरुकुमुल्लाह, आप रो चुके, बड़ा रो चुके, चंद सेकंड सांस लो, दूसरा मरहला मसाइब का सुनाता हूं। आए घर में, खैमे में आए, मौला ने कासिम को खुद तैयार किया। इमाम थे इमाम हुसैन, उस्ताद थे हजरत अब्बास, मौला अब्बास आगे बढ़ के कहते हैं, मौला अगर आप इजाज़त दे तो अपने शागिर्द को खुद जीन में बिठाता। फरमाया जैसे तुम्हारी मर्जी हो। माँ के सामने कासिम को उठाकर हजरत अब्बास ने जीन में बिठाया। ओए 13 साल से ऊपर सिन कहीं नहीं लिखा हुआ। अभी अली अकबर की रीश तो आ रहे थे, कासिम की अभी रीश भी नहीं आई। मातम करो यार जवानों, मातम करो। जो मेरी माएँ बहनें आरजुएँ रखती हैं, मन्नतें मांगे हुए हैं, दुआ मांगो कासिम के लिए, सर पे मातम करो, तुम्हारी हाजतें पूरी होगी। मैं विदा नहीं पढ़ता, थोड़ा वक्त है, लेकर चल पड़े। कासिम मैदान में आए, टीले पर आकर हुसैन कुर्सी पे बैठे, आगे दाईं तरफ मौला अब्बास खड़े हुए और जनाब कासिम को लड़ने के जंग के तरीके बता रहे हैं। कसम बखुदा मैदान में आकर फरमाते हैं, जिन्होंने मेरे बाबा हसन की सुलह देखी है ना और जंग नहीं देखी, आओ आज मैदान में लड़ूंगा, हसन लड़ता हुआ नजर आएगा। आज मैं मैदान में ऐसे लड़ूंगा जैसे बाबा हसन मुजतबा लड़ रहे हो। रज पढ़ा मेरे मौला ने। बहुत सारे नारी आए, जनाब कासिम ने उनको फिन्नार किया। आप जो रोने के लिए आया है, इब्न साद मलून ने कहा, अरज़क जाओ तुम इस बच्चे के मुकाबले में। ये कहता है शर्म करो, मैं तन्हा 1000 से लड़ता हूँ, तन्हा 1000 से लड़ता हूँ। ये बच्चा है, ये बच्चा है, मैं अपना बेटा भेजता हूँ, ये अभी फिर उसके साथ लड़के आ जाएगा। उसने कहा ठीक है। इसने बेटा भेजा, प्यासे ने उसे फिर नार किया। दूसरा बेटा भेजा, यतीम हसन ने उसको भी तहे देख फरमाया। चारों बेटों को जब मारा ना, अब इस अरज़क के सामने अंधेरा हुआ। इसने तलवार को नियाम से निकाला, एक तरफ इसने गुर्ज लिया लोहे का, जिसको अपने सर से घुमाता हुआ चला। अब सुनना, ये मंजर मौला गाजी ने देखा ना, ऐसे रोकर कहते हैं, मौला इसके मुकाबले में मुझे जाने दे। ये हरामजादा तन्हा 1000 से लड़ता है, मेरा कासिम अभी बच्चा है, इसने पानी पिया हुआ है, मेरा लाल प्यासा है, ये खाना खा के आ रहा है, मातम मेरा लाल भूखा है, मुझे लड़ने की इजाजत दे। मौला फरमाते नहीं नहीं, तूने नहीं जाना। खैमे की तरफ देख कर कहा, उम्मे फरवा दुआ करो, माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, तुझे बेटा मिल जाए। रोने वालों, एक मर्तबा बीबी फरवा ने अपने बालू पर कुरान रखा, रोकर कहा, अल्लाह ओ याकूब को यूसुफ मिलाने वाला, मुझे कासिम मिला। रोने वालों, माँ की दुआ कबूल हुई। हजरत कासिम के सामने ये अरज़क शामी आया। अब हुसैन भी कुर्सी से उठ खड़े हुए देख रहे हैं। जनाब अब्बास ने कहा, बेटा रकाबू के ऊपर खड़े हो जाओ। कासिम खड़ा हो गया, वो सामने आया, फरमाया उछल के बाहर करो। यतीम ने बाहर किया, अरज़क जमीन पे गिरा। हुसैन की आवाज आई, शाबाश हो मेरा यतीम बेटा, शाबाश हो मेरा प्यासा बेटा, शाबाश हो मेरा हसन का यतीम बेटा। इसका गिरना था, फौजों ने हमला किया। अब जब फौजों ने हमला किया, आवाज आई, जजा मेरा सलाम। 2 रिवायतें खत्म, 2 रिवायतें खत्म। ठहर जाओ, 2
रिवायतें मुझे पढ़ने दो, रोते रहोगे। एक रिवायत सुनो, फिर शबी आएगी, दूसरी शबी के बाद पढ़ूंगा। पहली रिवायत, कसम से शेख शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, करबला के शोहदा में से ये वाहिद हजरत कासिम है। हर कोई शहीद होने के बाद पामाल हुआ, माँ के देखते कासिम जिंदा पामाल हो गया। घोड़े दौड़ गए, हड्डियां टूट दी थी, माता ले आओ सभी को, हड्डियां टूट दी थी और या मुल्तक़िब शहीद